Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering environment related current affairs for the upcoming CBSE Direct Recruitment examination. This is the second part of the video series, and I'll be completing the entire the leftover portion in this video. So, the 12th, we were here. The 12th point for the month of this was July. Okay. A rare Grandala, sorry. Hmm. A rare Grandala electric bluebird was recently spotted in Sanj Valley, Himachal Pradesh, and it has been classified as least concerned under the IUCN Red List. So this is not a very important news item. Next है India's most elusive and threatened wildcat, the rare caracal, has been camera trapped within the fenced cheetah zone ऑफ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश. तो वहाँ पे भी है ये हमारा मोस्ट थ्रेटन्ड वाइल्ड कैट एंड द नेम इज द रेयर कैरकल. ठीक है, तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में मिला है. नेक्स्ट है अ न्यू स्पीशीज ऑफ लाइकन एलोग्राफा एफोसोरेडिका has been discovered in the Western Ghats by scientists from Max Agarkar Research Institute, Pune, an autonomous institute of the Department of Science and Technology, Government of India. ठीक है, तो ये भी दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. नेक्स्ट है रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई नेमली द लिरियोथेमिस अब्राहमी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन केरला. ठीक है, अगेन नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है. Recent marine explorations near Kumjima Island have revealed a strikingly unique sea creature named Clavellina ossipande. तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, बस एक बार देख लेते हैं क्या होता है. क्लैवलिना ossipande, Sundarbans Tiger Reserve inches closer to becoming India's second largest tiger sanctuary as a long pending proposal to expand its area by about 1100 square kilometer and has finally reached the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. नहीं, ये गलत लिखा है कुछ भी. Basically it is about to become India's second largest tiger sanctuary. ठीक है, और इसका प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास चले गया है टू डिक्लेयर इट टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी. ये जो चीज़ है ना क्लैवलिना ossipande, ये बेसिकली एक सी ऑर्गेनिज्म है, सी स्क्वर्ट बोलते हैं इसको, और अजीब सा दिखता है, स्केलेटन जैसे दिखता है ये, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल आई जस्ट लुक्ड एट इट. नेक्स्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व in Assam has recorded the third highest tiger density in India after Bandipur and Corbett, as per the latest reports released by the Chief Minister of Assam on Global Tiger Day. तो ये देख लेते हैं हम लोग कि हाँ बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटका में. ठीक है, सिमिलरली कॉर्बेट उत्तराखंड है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहाँ पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा बांदीपुर में, फिर उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इज़ फ्रॉम काजीरंगा टाइगर रिजर्व, असम. ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. पहला है बांदीपुर, फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और थर्ड है काजीरंगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है लैंटाना कमारा स्पीशीज was first introduced in India in the early 18th century as an ornamental plant. Now it invests approximately 3,25,000 hectares of forest in Himachal Pradesh, posing a threat to state's native biodiversity. ठीक है, इट इज़ एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़. ठीक है, तो लैंटाना आपने देखा होगा, ऐसे
झाड़ियाँ टाइप होती हैं और ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंचेस रहते हैं उसके. इट इज़ वेरी कॉमन थ्रू आउट इंडिया and it is basically an invasive species which was introduced in India in the early 18th century. ठीक है, ornamental plant जैसे लाए थे पर अब वो हर जगह लगने लग गया है. Next, one of the biggest threats to pineapple farming is a disease called fusariosis, caused by the aggressive fungus Fusarium moniliform. तो ये भी नई काम का नहीं है. Next, India's resolution titled Promoting Sustainable Lifestyles for the Wise Use of Wetlands was formally adopted at Ramsar COP15 held in Victoria Falls, Zimbabwe on 30th July 2025. ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो रामसार का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ था एट जिम्बाब्वे in 2025. वहाँ पे इंडिया का रेजोल्यूशन which was titled Promoting Sustainable Lifestyles for the Wise Use of Wetlands. Promoting Sustainable Lifestyle for the Wise Use of Wetlands was formally adopted at Ramsar COP15 held in Victoria Falls, Zimbabwe on 30th July. Next है Kaziranga National Park in Assam has conducted India's first ever grassland bird census, and it has recorded a total of 43 grassland bird species. ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम ने फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. और टोटल कितने 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड. ठीक है, काजीरंगा में. ठीक है, ग्रासलैंड्स जैसी जगह होगी वो. नेक्स्ट है अगस्त का न्यूज़ है. Joint research has for the first time ascertained the composition of the intestinal microbiome of the Indri, a critically endangered lemur found in the northeast of Madagascar. तो बेसिकली क्या है, जॉइंट रिसर्च ये भी किसी काम का नहीं है. ठीक है, डू नॉट बॉदर विद दिस. नेक्स्ट है अगस्त का. Recently, a burst of rare and colorful blue pink gill fungi has been documented in Kagasnagar Forest Division of the Komaram Bhim Asifabad district of Telangana. It is referred to as the sky blue mushroom also. ठीक है, so scientific name क्या है उसका, Entoloma hoxtetri. This genus of mushrooms has pink to purplish hues. This is also not important. बस एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ब्लू पिंक किल फंगाई कहाँ पे, वेयर इज़ इट फाउंड, तो तेलंगाना रीजन में है ये और कागज़ नगर फॉरेस्ट में. ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट. द असम गवर्नमेंट्स ऑपरेशन फैल्कन has successfully arrested 42 rhino poachers, dismantled 6 major poaching gangs, and foiled 9 poaching attempts, ensuring 0 rhino killings in the state so far. ठीक है, तो असम गवर्नमेंट का है ऑपरेशन फाल्कन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं. उसमें वही पोचिंग को, इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग पोचिंग इन द असम रीजन. ठीक है, वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क हो, ये सब वहाँ पे है, तो पोचिंग अवॉइड नहीं, ख़त्म करने के लिए दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑपरेशन फाल्कन. नेक्स्ट, इसराइल्स लार्जेस्ट. इसको लर्न कैसे करेंगे फाल्कन को. फाल्कन एक बर्ड का नाम होता है ना. और अगर आप मैप पे असम को देखोगे तो वो भी ऐसे बर्ड जैसे ही दिखेगा आपको, ऐसे कोई बर्ड जिसके विंग्स खुले हुए हैं, है ना, वैसा दिखता है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं. ऑपरेशन फाल्कन असम.
नेक्स्ट है Israel's largest freshwater lake changed color to red due to an algal bloom. The green algae, that is Botryococcus brownie, common in the lake, produces red pigments under sunlight. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. algal bloom हमारे यहाँ पे भी हुआ था, बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम. नेक्स्ट है the Great Barrier Reef, located off the eastern coast of Australia in the state of Queensland, has recorded its largest annual coral cover decline in nearly 40 years, driven by severe coral bleaching, cyclones, and crown of thorns starfish outbreaks. ठीक है, coral eating starfish कर एक होती है which basically eats the corals, और उससे उनका कोरल कवर कम होते जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं सच एज साइक्लोन्स, क्लोरल ब्लीचिंग एट्सेट्रा, उसकी वजह से भी द कोरल कवर हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली. ठीक है, तो कहाँ की बात हो रही है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही है, विच इज़ एट which is located off the eastern coast of Australia in the state of Queensland. Next, recently the world's smallest known snake, Barbados thread snake, was rediscovered after vanishing for decades. ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये वर्ल्ड का है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा. Had it been from India, it would have been important. Next, a Central Zoo Authority report reveals a mix-up in identifying the alpine musk deer for conservation breeding, mistakenly initiating programs for the Himalayan musk deer instead. The alpine musk deer is a musk deer species found only in Asia. So again, this is not very important. Next है, the Kerala High Court recently directed the state government and the State Wetland Authority Kerala to constitute an Ashtamudi wetland management unit for the conservation of the wetland within 2 months of a notification being issued for this. Again, not very important. 13 stretches of rivers in Gujarat have been officially classified as polluted, with the Sabarmati emerging as the most contaminated according to data tabled by the Union government in the Lok Sabha recently. Sabarmati river is basically a monsoon fed west flowing river. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि साबरमती ईस्ट flowing है कि वेस्ट फ्लोइंग. सो द आंसर इज इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. और दो मेजर रिवर्स कौन सी हैं वेस्ट फ्लोइंग? एक तो नर्मदा है और एक तापी. ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से होते हैं ओरिजिनेट. अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है? MP छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे. ठीक है, नेक्स्ट है the population of Nilgiri Tahar, Tamil Nadu state animal, recorded a 21% increase. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसका याद रखिएगा कि स्टेट एनिमल क्या है तमिलनाडु का? नीलगिरी ताहर. ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल इज नीलगिरी ताहर. नेक्स्ट, National Tiger Conservation Authority restricts the definition of tiger corridors to 32 least cost pathways identified in its 2014 report. ये अगेन काम का नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, नेपाल officially joins India-led International Big Cat Alliance. The International Big Cat Alliance officially became a treaty-based intergovernmental organization and international legal entity on the 23rd January 2025 with headquarters in India. ठीक है, तो it has become a treaty-based intergovernmental organization as well as an international legal entity on 23rd January 2025 with headquarters in India. Next है the first experiment
to artificially incubate the Asian giant tortoises in mainland Asia has succeeded in Manipur. The Asian giant tortoise is a critically endangered species. ठीक है? So it is the first this is not important again. First experiment to artificially incubate Asian giant tortoises in mainland Asia has succeeded in Manipur. तो एशियन ये पूछ सकते हैं कि जो एशियन जाइंट टॉर्टोइज है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है. उसके अलावा हाँ आर्टिफिल ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, University of Witwatersrand in South Africa has launched an innovative anti-poaching campaign. It uses radioactive isotopes injected into horns. तो ठीक है, इसको नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ऐसे देखने के लिए यू कैन जस्ट रीड इट कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं फॉर इंजेक्टिंग इनटू राइनो हॉर्न्स सो दैट एंटी पोचिंग एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट. ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू एनेबल कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग regime. India has constituted a 21 member national अच्छा. So India has constituted a 21-member national designated authority headed by the Union Environment Secretary under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो इसमें बस इतना याद रखना कि नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक स्टार्ट करा है टू एनेबल कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम रेजिम. ठीक है. और कितने मेंबर्स हैं उसमें? 21 मेंबर्स हैं. इसमें जो मेन न्यूज़ किस चीज़ की दी है इसमें? कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम की. ठीक है. कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग रेजिम के लिए एनडीए इन लोगों ने एक लॉन्च किया है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. नेक्स्ट है the Indian carbon market is set to be launched in 2026. Carbon dioxide removal technologies such as biochar are expected to play a crucial role. Biochar is a type of charcoal rich in carbon and is produced from agricultural residue and organic municipal solid waste. ठीक है. तो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बायोचार का वैसे पता ही होता है सबको. However, Indian carbon market is set to be launched in 2026. So this is an important news item. Next, recent research in the North Pacific subtropical gyre has identified a giant virus named PE4I. Yeah, one. The virus infects the plankton Pelagodinium and is notable for its exceptionally long tail. So this is not important. ठीक है. Now technical news is generally not important, especially which is since this news is very niche है ना, तो ये it is not important. Next है Google has rolled out a new image generation and editing AI model Gemini 2.5. Flash image और nano banana बोलते हैं. Next, in India, euglena and its relatives are now widespread indicators of deteriorating water quality. And ये है क्या चीज़? This is a unicellular microorganism, flagellated microorganism. ठीक है. इसका नाम क्या है? यूजेला. यूजेला यू हाँ ठीक है. सो यूजलेना है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ algae. ठीक है. एंड क्या कैसे के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ बेसिकली अ वाइड स्प्रेड इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी. ठीक है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम कि यूजलेना या यूग्लेना जो भी है
क्या होता है? It is basically an algae which acts as an indicator of water quality. Next, two new species of damselflies named Concon, Concon shadow damsel and crimson shadow damsel have been discovered in Western Ghats um, by researchers from Maharashtra as well as Kerala both. ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. वैसे शैडो डैमसल भी एक फ्लाई का फॉर्म है, ठीक है, फ्लाई होती है. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट है हेप्टाप्ल्यूरम assamicum. It is a new plant species. Scientists have recently identified it in Assam's Dima Hasao and West Karbi Anglong districts. For now, it has been categorized as data deficient under IUCN criteria. ठीक है, again not important. अभी now we'll move to the news items from September. Madhya Pradesh has initiated a cheetah mating program in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary to create a second viable home for cheetahs after Kuno National Park. Next, India's first ever vulture conservation portal, named the Vulture Network, has officially been launched in Assam. It is developed by V Foundation India in collaboration with Guwahati University's Department of Zoology. The portal was unveiled on September 2nd, 2025, ahead of the International Vulture Awareness Day. So this is an important news item. ठीक है, क्या है? इंडिया का फर्स्ट एवर वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल. वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है. नेम क्या है इस पोर्टल का? द वल्चर नेटवर्क. कहाँ पे है? आसाम में. और इसको किसने लॉन्च किया? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय वी फाउंडेशन इंडिया in collaboration with Guwahati University's Department of Zoology. ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना है हमको कि वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो है, वल्चर नेटवर्क है, वो किसने डेवलप किया है? वी फाउंडेशन. तो वल्चर का वी से वी यू कैन कनेक्ट दिस, है ना. तो ऐसे लिंक करके यू विल बी एबल टू लर्न इट. Next, researchers from Kerala have identified an edible tuber and named it as ये नाम दिया है. It is a new species of genus Discoria. This is not important. Next, a new orchid recorded in Arunachal Pradesh. Again, this is also not important. Where a rare sighting of a Himalayan brown bear, reportedly with its family in Nilong and Jadung valleys, has sparked excitement within Gangotri National Park, Uttarakhand. It is the largest mammal found in the high altitude regions of Himalayas. तो इसमें से बस ये इम्पोर्टेंट है कि हिमालयन ब्राउन बियर का IUCN रेड लिस्ट में कैटेगरी क्या है, मतलब उसका स्टेटस क्या है. तो द आंसर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्पॉट हुआ था. तो बस इतना ही याद रखना है आपको, हिमालयन ब्राउन बेयर. ठीक है, नेक्स्ट है a WWF India survey in Arunachal Pradesh. Worldwide Fund India survey in Arunachal Pradesh has captured the first photographic evidence of Pallas's cat in the state, reaffirming the Eastern Himalayas as a global biodiversity hotspot, native to Central Asia, particularly Mongolia, China and parts of Russia. तो इसमें क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इंडिया का सर्वे हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और पैलेस कैट करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी फोटोग्राफ्स मिली है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. देयरफॉर इट हैज़ कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पीशीज इन इंडिया. ठीक है, तो नाम क्या है? पैलेसिस कैट. ठीक है. ये कांकन है गेको का. Next, Australia approves world's first vaccine to save koalas from chlamydia infections causing infertility and
डेथ इन द आइकॉनिक नेटिव स्पीशीज दैट इज लिस्टेड इन एंडेंजर्ड, ये भी काम का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली अ रेयर रेड कोरल kukri snake species last reported in 1936 was recently found trapped in a net in a village near Pilibhit Tiger Reserve, UP. It is one of the rarest non-venomous snake species. Not very important. Next, reintroduction initiative. 10 critically endangered Asian Asian giant tortoises were released into the Zeliang Community Reserve, Parent District, Nagaland. So this is very important. ठीक है, सबसे पहले तो क्या सवाल पूछ लेंगे since this has been in the news. So the first question which may be asked is Zeliang Community Reserve कहाँ पे है? ठीक है, तो ये कहाँ, नागालैंड का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और चीज़ क्या पूछ लेंगे कि ये एशियन जाइंट टॉर्टोइजेस को कहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस करा है, तो वो भी जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है हमें? सो जस्ट लुक एट दिस, वेट, यहाँ पे नागालैंड है ना, तो NG नागालैंड, ठीक है, और यहाँ पे जेलियांग का N और G, ठीक है, तो जेलियांग का NG और ये नागालैंड का, ठीक है, ऐसे लिंक कर सकते हो NG उससे। ठीक है, नेक्स्ट है रेड नेक्ड phalarope, a rare migratory bird, was recently sighted at the Nanjarayan Bird Sanctuary in Tirupur city. This marks the first time that the species has been recorded in this inland water body. और इसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। तो ये क्या नाम क्या है इसका? नंजारायन बर्ड सेंचुरी, इट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें सवाल बस मेन यही पूछ सकते हैं, सिंस दिस बर्ड सेंचुरी हैज़ बीन इन न्यूज़, तो ये पूछ सकते हैं कि नंजरायन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। सो द आंसर फॉर दैट विल बी तमिलनाडु। ठीक है, इसको लर्न करने का, लेट मी थिंक ऑफ सम निमोनिक फॉर दिस। और ये रेड नेक्ड phalarope, इसका भी आप नाम देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको लर्न करने के लिए ऐसा कर लो, नंजरायन है ना, देखो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या होता है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो अगर आपने भरतनाट्यम देखा रहेगा, तो उसमें जो डांसर्स होते हैं ना, लेडीज़ जो भी, वो उनका आईज़ देखना आप, वो एकदम अच्छे से वेरी नाइसली डेकोरेटेड आईज़ है ना, और बहुत सारा कोल लगा के, आई लाइनर कोल लगा के, वेरी लवली डेकोरेटेड आईज़ रहती हैं उन लोगों की, ब्यूटिफुली मेड अप, है ना। तो आईज़ क्या होते हैं? नयन। हाँ, उससे हम लोग वी कैन लर्न नंजरायन। नंजरायन इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, जहाँ पे भरतनाट्यम करते हैं। भरतनाट्यम में आईज आर वेरी नाइसली मेड अप बाय द डांसर्स। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ एडिबल मशरूम नाउ फॉर्मली नेम्ड एज लैक्टिफ्लस। ये काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द दिल्ली गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ टाइम बाउंड स्टडी ऑन स्मॉग ईटिंग। अच्छा, they'll conduct a time-bound study on smog-eating photocatalytic coatings in Delhi to combat air pollution. These are special surface coatings which are applied on roads, building surfaces that use a photocatalyst to break down the air pollutants. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़ है, इट इज़ नॉट वेरी लाइकली दैट दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बस ऐसे ही लर्न कर लो कि स्मॉग ईटिंग फोटो कैटलिटिक कोटिंग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं।
so that if you coat the building surfaces as well as the roads with this, it will help to break down the air pollutants. Next here, researchers recently found a new plant species named Impatiens selva singhi in the Kudremukh range of Western Ghats. It is named after an associate professor of botany at Madras Christian College, not very important. Next, researchers from the National Bureau of Fish Genetic Resources have discovered a new species of finless snake eel and named it after Kanyakumari as Apterychtus Kanyakumari, discovered off the Kolachal coast. So again, not very important. The IUCN World Conservation Congress, held at Abu Dhabi, adopted a resolution recognizing India's first Dugong Conservation Reserve in Park Bay, Tamil Nadu, as a global model for marine biodiversity conservation. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। ठीक है, इसमें क्या है, IUCN का एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है। इट वाज हेल्ड एट अबू धाबी इन 2025। तो दे हैव रिकग्नाइज्ड इंडियाज डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग एक सी एनिमल होता है, ठीक है, उसको सी काऊ भी बोलते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। तो इंडिया का जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है पार्क बे में है, पार्क बे तमिलनाडु में। इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे रिकग्नाइज किया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट है बुआलोए, local name for Opong, is part of the 2025 Pacific typhoon or tropical cyclone season. In the Philippines, Bualoi made landfall with sustained winds of up to 110 kilometers per hour. ठीक है, तो एक साइक्लोन का नाम है बुआलोई। फिलीपींस में आया था, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बुआलोई किस चीज़ का नाम है, इट इज़ बुआलोई और ओपोंग is the name of a cyclone which which uh, had made landfall at Philippines। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपका बुआ मतलब पापा की सिस्टर है ना, वो फिलीपींस घूमने गए। ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस बुआलोई। नेक्स्ट, मुखी, अ फीमेल चीता born in Kuno National Park, Madhya Pradesh, has officially become the first Indian born cheetah to reach adulthood. Mukhi was born to Jwala, a cheetah brought from Namibia। ठीक है, नमीबिया से एक चीता लाए थे, उसको उसका ऑफस्प्रिंग था ये। नेक्स्ट है 14th वाला, अ 54 किलोमीटर लॉन्ग elevated road bridge that will take traffic over the Nalamala forests of the Amrabad tiger located in the Nalamala hills of the Eastern Ghats in Telangana state। ठीक है, तो एक एलिवेटेड रोड ब्रिज बनाया है ओवर द नलामला फॉरेस्ट्स ऑफ तेलंगाना। ठीक है, टू in order to ensure that no traffic passes through the अमराबाद टाइगर रिजर्व, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं नीचे, वहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट कम करने के लिए न्यू रोड बनाया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें आप ये याद रखना एग्जाम में, सिंस दिस हैज़ बीन इन द न्यूज़, सो दे माइट आस्क के सबसे पहले तो नलामला फॉरेस्ट्स है कहाँ, तो ये हमें पता है तेलंगाना के पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स भी होते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम। और अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अमराबाद इज़ अगेन इन तेलंगाना। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तेलंगाना में है। नलामला फॉरेस्ट्स भी हैं वहाँ पे, और बस ये। ठीक है, नेक्स्ट है
Recently, the Forest Department has registered a case into the mysterious deaths of nine bonnet macaws near Palod in Thiruvananthapuram, Kerala, a primate species endemic to southern India, often found living close to human settlements. इसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल. ठीक है, तो इसमें बस ये पूछ सकते हैं कि एग्जाम में बॉनेट मकाउस कहाँ पे दे आर एंडेमिक टू विच स्पीशीज विच एरिया, तो वो ही आ जाएगा केरला वेस्टर्न घाट्स से. ठीक है, और ये बेसिकली मंकी प्राइमेट का फॉर्म है ना, मंकी टाइप कुछ दिखता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइफून. टाइफून मिटाग. It makes landfall in China's Guangdong and brings heavy rains and strong winds. ठीक है, तो चाइना में एक टाइफून आया, उसका नाम क्या है? मिटाग. और उससे पहले कहाँ पे? फिलीपींस में आया था बुआलोई. ठीक है, तो टाइफून इज अ फॉर्म ऑफ अ साइक्लोन दैट हैज विंड स्पीड ऑफ नियरली 119 किलोमीटर्स पर आवर and above and develops over warm ocean waters near the equator. ठीक है, तो नाम याद रखना के लिए कैसे करेंगे? मिटाग है ना, कहाँ पे आया? चाइना में. तो इसको ऐसे लर्न कर लो. चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है ना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. तो वो लोग ट्राई क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ का नाम हटा के कोई भी न्यू रीजन लेके उस पर अपना नाम लगा लें. ठीक है, तो जैसे वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा अक्साई चिन एरिया ले लेंगे. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसको लर्न कैसे करेंगे? वो इंडिया का नाम मिटा रहे हैं अक्साई चिन से, मिटा. तो मिटाग उससे लर्न हो जाएगा. ठीक है, और अपना दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी टू दिस रीजन. ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा मिटाग और चाइना. वो मिटा के दूसरे कंट्रीज़ का नाम मिटा के इट एक्सपैंड्स. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल स्टॉर्म इमेल्डा has formed near the Bahamas and is expected to strengthen into a hurricane as it moves northward along Florida's eastern coastline. ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम क्या है? इमेल्डा. यूएसए साइड में कहीं पे आया है ये, आया था पिछले साल. इसको लर्न कैसे करेंगे? I melted upon seeing Florida's beauty. ठीक है, फ्लोरिडा की नेचुरल ब्यूटी देख के आई मेल्टेड, तो आई मेल्डा हो जाएगा. ठीक है, लर्न. नेक्स्ट वील मूव टू अक्टूबर के न्यूज़ आइटम्स. तो सबसे पहले क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी recently released India's first forest focused environmental accounting report. ठीक है, this is the eighth in its environment account series based on United Nations system of environment environmental economic accounts. मतलब CA फ्रेमवर्क में, SEEA फ्रेमवर्क के अंदर एट्थ बुक है ये. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. इसका नाम क्या है? मॉस्पी ने रिलीज़ करा है और इसका नेम है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट फोकस्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट. और किसके ऊपर बेस्ड है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. ठीक है, नेक्स्ट है द गज रक्षक ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश to monitor elephant movements and to reduce human elephant conflict. ठीक है, particularly in the बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रीजन. सो ये इतना ही है इसमें. नेक्स्ट है न्यू कोरल स्पीशीज.
इसका बस नाम आप याद रख लेना, गज रक्षक ऐप का। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने, टू ट्रैक एलिफेंट मूवमेंट्स और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। कहाँ पे है ये? प्राइमरली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, विच इज़ इन मध्य प्रदेश इटसेल्फ। ठीक है। New coral species is the Gorgia chewbacca, found in tropical western Pacific Ocean. It was first observed in 2006 and later confirmed as a distinct species through genetic analysis. So, बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा याद रखना कि इर्दोगॉर्जिया च्यूबाका किसका एग्जाम्पल है? तो कोरल का एग्जाम्पल है। ठीक है। Next, according to reports, the paddy crop, which is at the maturing and harvesting stage, has been infested with false smut disease, causing widespread damage across Punjab. इसमें बस क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैडी क्रॉप में कौन सी डिजीज कॉमनली लग जाती है ना? सो द आंसर विल बी द फॉल्स स्मट डिजीज। ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी का इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फॉल्स स्मट डिजीज किस पे लग जाती है? राइस, पैडी क्रॉप पे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया अनवील्ड इट्स नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड 5 ईयर विजन एट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। तो अभी हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। तो वही है, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप निकाला है और 5 ईयर विजन एट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? वेट अ सेकेंड, शायद डुगोंग का, हाँ ये पढ़ा था। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में जो हुआ है उसमें इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विच इज़ एट पाल्क बे इन तमिलनाडु, इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है। और इस वाले में क्या हुआ है? इंडिया अनवील्ड इट्स नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड 5 ईयर विजन एट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। Next है, painted storks listed as near threatened on the IUCN Red List have returned to Kaziranga National Park after 4 years. Their main threats include wetland degradation, pollution, habitat loss, and human disturbance. तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें रेगुलरली दीज पेंटेड स्टोक्स यूज्ड टू विजिट। ठीक है, हर साल। हाउएवर फॉर द लास्ट 4 years दे हैड नॉट विजिटेड द नेशनल पार्क, और उसका रीज़न क्या था? वही वेटलैंड डिग्रेडेशन, एक्सेसिव पॉल्यूशन, ये सब। ठीक है, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, इन सब की वजह से इट हैड नॉट विजिटेड, पर अभी फिर से आ गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है or ortolan bunting, a rare European bird, was recently spotted in Baroipur on the southern edge of Kolkata. Only the second recorded sighting in West Bengal. और IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न रहता है। सो अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यू हर्ब स्पीशीज रिलेटेड टू सफ़ेद मूसली डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स। तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन राइजेस इन हिमाचल प्रदेश। और 2025 सर्वे बाय द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट recorded 83 snow leopards, marking an increase from 51 in 2025. तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा कि IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का? तो द आंसर इज वल्नरेबल। ठीक है। और स्नो लेपर्ड कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और वैसे हिमालयन रीजन्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, फिलीपींस लॉन्चेस साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक aimed at preserving coral larvae to safeguard marine biodiversity and restore damaged coral reefs. ठीक है। तो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया का, अच्छा साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है। नेक्स्ट है,
A severe blizzard struck the eastern face of the Mount Everest, trapping nearly 1,000 trekkers in the remote Karma Valley. A severe mid-latitude snowstorm, characterized by strong winds, low temperatures, and near zero visibility, caused by blowing snow. ये अगेन काम का नहीं है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में जो हुआ था, the quadrennial event marked the launch of India's first red list of endangered species. This is repeated, यहाँ पहले भी दिया ये न्यूज़, ये रहा. और ये नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप रिवील किया था, 5 ईयर विजन भी रिवील किया था. और एक और चीज़ क्या करा है इन्होंने, नेशनल रेड लिस्ट भी रिवील कर दिया, नेशनल रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, वी आर यूज टू स्टडिंग अबाउट द IUCN's रेड लिस्ट ना, तो इंडिया ने अपना खुद का भी एक रेड लिस्ट निकाल दिया एंडेंजर्ड स्पीशीज का. ठीक है, नेक्स्ट है नेसोलिंक्स बनाबिटाने, अ न्यू वास्प स्पीशीज discovered in Salt Lake, West Bengal, named after बनाबितान. ये अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, द टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है. तो द टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ वीक 2025 at FRI Dehradun, as a part of new national initiatives to conserve tigers living beyond the designated reserves. ठीक है, this is important, tiger outside the tiger reserves initiative project. Next है Bridgeoporus canadi, a newly discovered fungus species from Arunachal Pradesh, has been named in honor of Indian mycologist Kannad Das. नाम क्या रखा है उसका, Bridgeoporus canadi. Next, scientists discover a new fungal plant pathogen, Paramyrothecium strychniae species in Kerala. तो not very important news, ठीक है. Next, Tamil Nadu has sanctioned ₹1 crore for a new conservation program aimed at protecting 4 lesser known species. These species are lion-tailed macaw, Madras hedgehog, striped hyena and hump-headed mahseer fish. ठीक है, तो इसमें सवाल क्या पूछेंगे एग्जाम में, देखो ये स्पीशीज के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कहाँ वो एंडेमिक है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज आदि ऑफ इंडिया आदि इज फाउंड. तो नाम क्या क्या, लाइन टेल्ड मकाओ, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना, और लास्ट क्या है, हम्प हेडेड महासीर फिश. ठीक है, तो इसका ट्राई टू रिमेंबर दैट दीज ऑल 4 आर फाउंड इन, मतलब तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे सदर्न रीजन में है. ठीक है, नेक्स्ट है around 100 wild boars were found dead in Punjab's Nangal Wildlife Sanctuary, likely due to toxic waste in Nangal Lake, which is basically a 116-hectare Ramsar site within the Bakra Nangal Reservoir on the Satluj River. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, इसमें सिंस दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट. बाकी का न्यूज़ पर से इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो नाम क्या है इसका, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ अ रामसर साइट. ठीक है, बाकरा नंगल रेजर्वायर पे है ये, एंड दिस इज़ ऑन द सतलुज रिवर. ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड बोर्स हैव बीन फाउंडेड. Next, Armenia has become the newest member of the IUCN, as announced at the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi. Next है 5 Maharashtra beaches receive prestigious international blue flag certification. ठीक है, जनवरी की न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि 2 को मिला है. लेट मी टेल यू, केरला के एक तो कप्पाड़ बीच को मिला था और एक और था छल बीच. ठीक है,
उसके बाद हमने एक मंथ की न्यूज़ में ये पढ़ा था कि जो ऋषिकोंडा है, ऋषिकोंडा बीच ऑफ विशाखापट्टनम, उसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हैज़ बीन विड्रॉन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, पुअर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, अभी वाले न्यूज़ में क्या दिया है कि 5 बीचेस फ्रॉम महाराष्ट्र हैव रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये कौन देता है? बेसिकली डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फी। ठीक है, ये दिस इज़ द वन हु अवॉर्ड्स द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, और ये इनके नाम याद कर लेते हैं, कौन से बीचेस हैं महाराष्ट्र के? श्रीवर्धन बीच ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में नागांव बीच, फिर उसके बाद में है परनका बीच। ठीक है, उसके बाद गुहागर बीच, और लास्ट है लडघर बीच। तो इनके नाम याद होने चाहिए हमें, श्रीवर्धन, नगांव, परनका, गुहागर एंड लडघर। नेक्स्ट है the green sea turtle, the largest hard-shelled sea turtle species, has been upgraded by IUCN from endangered to least concern, thus marking a major conservation success. ठीक है, a new plant species चौना बुकू चुलू, देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रीन सी टर्टल। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, a new plant species चौना बुकू चुलू मीनिंग noble red has been discovered in Basar district, Leparda district of Arunachal Pradesh, and it has been named after the deputy CM Chona May for its vibrant red leaves. So not very important. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? The IUCN has classified the Indian or the peninsular wolf as a potential distinct species currently listed as vulnerable. ठीक है, not very important. फिर बस नाम ये पूछ सकते हैं कि जो इंडियन वुल्फ या पेनिनसुलर वुल्फ है, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज है। नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया मार्क्ड 25 years of the वन रक्षक प्रोजेक्ट at the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi. ठीक है, where Minister of State Kirti Vardhan Singh released the report Guardians of the Wild Supporting India's Frontline Forest Staff. ठीक है, तो इसका हम लोग नाम याद कर लेते हैं, क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का देर आर it has marked the 25 years of वन रक्षक project. ठीक है, रक्षक प्रोजेक्ट किसके लिए लॉन्च किया है? बेसिकली गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड सपोर्टिंग इंडियाज फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ के लिए। बेसिकली क्या लिखा क्या इसमें? वन रक्षक प्रोजेक्ट है इंडिया का फॉर इंडियाज फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ। ठीक है, ठीक है, वन रक्षक प्रोजेक्ट इन लोगों के लिए, उसको 25 years हो गए हैं एंड इसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, इट वॉज प्रेजेंटेड, उसका नाम था गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड सपोर्टिंग इंडियाज फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम क्या है? इन द 2025 IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, द वेस्टर्न घाट्स, मानस नेशनल पार्क एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क वर प्लेस्ड अंडर द significant concern category among 63 natural world heritage sites assessed globally. ठीक है, तो क्या है लिखा क्या है?
2025 का IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक होता है। इसमें चार जगहों का, वेस्टर्न घाट्स, मानस नेशनल पार्क एंड नहीं, तीन जगहों का, तीन जगह, वेस्टर्न घाट्स, मानस नेशनल पार्क एज वेल एज सुंदरबंस नेशनल पार्क, दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर द सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी among 63 natural world heritage sites. ठीक है, so this is very very important. Next है impatiens rajibiana, a new species of balsam flower discovered by the Botanical Survey of India in the moist shaded forests of Shergaon, Arunachal Pradesh at over 2000 meters elevation, adds to India's 230 known balsam species. ठीक है, so again this is not very important. Next, China issues yellow alert as typhoon Fengshen approaches southern coast. ठीक है, तो ये नाम पूछ सकते हैं कि जो टाइफून फेंगशन था वो कहाँ पे आया था, तो वो आप लर्न कर लीजिए कि टाइफून फेंगशन चाइना। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए जैसे फेंगशन, ये चाइनीज़ नाम ही लग रहा है ना, तो इसको वैसे लर्न कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM has invoked stage 2 of the graded response action plan as the AQI in Delhi NCR crossed 300, thus entering the very poor category. ठीक है, तो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ना, वो बेसिकली दिल्ली का एक क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट स्टेप है बेसिकली विच इज़ टेकन अप अगर द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द स्टेट क्रॉसेस 300। ठीक है, तो GRAP तभी आता है इन फोर्स व्हेन द AQI क्रॉसेस 300, तो बस उसके बारे में ये दिया है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द वन हु इन्वोक्स द GRAP। ठीक है, ये सवाल पूछ सकते हैं वो लोग पेपर में कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कौन इन्वोक करता है, तो दैट इज CAQM। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, और AQI कितना क्रॉस होना चाहिए इसके लिए, 300। ठीक है, 300 का अगर AQI क्रॉस हो गया, सो दैट मीन्स graded response action plan will come into play. Next, a report by Grain highlights that an increasing number of free trade agreements are pushing countries to adopt plant variety protection standards mandated by the 1991 UPOV Convention under the International Union for the Protection of New Varieties of Plants. ठीक है, इसमें कुछ भी ये इनिशियल वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, दी ओनली इम्पोर्टेंट पोर्शन इज कि 1991 का UPOV कन्वेंशन है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये बस नाम याद रखना है आपको। कब का कन्वेंशन है, 1991 का कन्वेंशन है। इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, next, a international bird watching program was held at Rakcham Chitkul Wildlife Sanctuary in Kinnaur district of Himachal Pradesh, which is a part of the Western Himalayas. The sanctuary also features the Lamkhanga Pass Trail linking Kinnaur to Gangotri in Uttarakhand. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, you can have a look see यहाँ पे। An international bird watching program was held at Himachal Pradesh. ठीक है, कौन सी सेंचुरी में हुआ था, चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो द नेम ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाम क्या है, रक्षम चितकुल
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश में नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे हम काफ़ी सारी सीनरीज देखते हैं, और वहाँ की जो जगह होती है वहाँ के लोग बहुत सीनरीज या चित्र बनाते हैं, चित्र पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इससे चित्र से क्या लर्न हो जाएगा? चितकुल। ठीक है, चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट इट विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट काली टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज कंपोज्ड ऑफ दानले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेट अ सेकंड, लेट मी चेक अच्छे से। ठीक है, कर्नाटका है ना। काली टाइगर वही लिखा ही था यहाँ पे। इट इज कंपोज्ड ऑफ दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज आंशी नेशनल पार्क, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, और कौन से दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बना के बनाए? दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों तीनों ही कहाँ पे? कर्नाटका में ही है। ठीक है, क्या क्या नाम है? काली, दंदेली और अंशी। नेक्स्ट है, तुवालू जॉइंस IUCN एज द 90th मेंबर स्टेट। ठीक है, तो बस इसका ऐसे याद रखना आप लोग। Tuvalu has joined IUCN as the 90th member state. Next, the black buck, declared locally extinct in 2017, has reappeared in Barnavapura Wildlife Sanctuary under a 5-year revival plan. ठीक है, तो ये extinct हो गए थे locally. However, they have again come up in Barnavapura Wildlife Sanctuary. कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट, महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी, इसको लर्न कैसे करेंगे? बरनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़। तो हाँ, इसको ऐसे लर्न कर लो। आपको पता होगा ब्लैक बक के केस किससे रिलेटेड है? सलमान खान जी से रिलेटेड है ना, ब्लैक बक का केस। ही हैड शॉट अब एलिगली शॉट ही हैड शॉट अ ब्लैक बक। ठीक है, तो इनको लर्न करने के लिए आपको पता होगा कि सलमान खान का जो हाउस है इट इज़ वेरी स्मॉल। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि उनका जो बॉम्बे में हाउस है, घर है, घर इज़ क्वाइट स्मॉल। तो इसको हम लर्न करने के लिए ये निमोनिक या जो भी लर्निंग एड यूज़ कर सकते हैं कि सलमान खान ने जो घर बनवाया है, GARH, घर बनवाया है वो, इट इज़ क्वाइट स्मॉल। ठीक है, तो इससे यू कैन लिंक इट विद दिस एंड लर्न दिस न्यूज़ आइटम। ठीक है, नेक्स्ट है महुआ दानर wolf sanctuary in Lathia district of Jharkhand is the only wildlife sanctuary in India dedicated entirely to the Indian grey wolf. It was established in 1976 for the conservation of the Indian grey wolf. नाम क्या है? महुआ दानर wolf sanctuary in Lathia district of Jharkhand. इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? महुआ आपको पता होगा, महुआ मोइत्रा।
एक फेमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो टीएमसी की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा में है वो, है ना। और तो उनसे, शी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, शी रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कहाँ, झारखंड के थोड़ा सा पास में ही है ना, उससे लर्न कर सकते हैं। महुआंध्र वाइल्ड लाइफ वुल्फ सेंचुरी इज इन झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, recently the Taal volcano in Philippines reportedly erupted 3 times. Taal is classified as a complex volcano by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ठीक है, फिवॉल्क्स। इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि ताल वोल्केनो है फिलीपींस में, विच हैज़ रिसेंटली इरप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है हरिकेन मेलिसा, इट हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू अ कैटेगरी 4 स्टॉर्म, ठीक है। इसमें बस इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, मेलिसा। तो ये हरिकेन मेलिसा कहाँ पे हुआ था, सेंट्रल अमेरिका है ना, क्यूबा, हैती, बहामास, बर्मुडाज और डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ था प्राइमरली, ठीक है। और इट वाज अ कैटेगरी 4 स्टॉर्म, ठीक है, क्यूबा, हैती, ये सब जगहों पे। सो दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि कहाँ पे आया था, बाकी तो कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। मेलिसा का ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे, विच वर द कंट्रीज विच वर अफेक्टेड, बहामास। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, बिल गेट्स की वाइफ, पुरानी जो वाइफ थी वो, उनका नाम था मेलिंडा गेट्स, है ना। उनके नाम पे देवर अ लॉट ऑफ चैरिटीज़, ठीक है। तो ये चैरिटीज़ कहाँ करते थे डोनेट, इन अंडर डेवलप्ड नेशंस लाइक हैती, बहामा, सुनी, क्यूबा, इन सब जगहों पे वो लोग काफ़ी डोनेट करते थे, ठीक है। तो उससे लर्न कर सकते हैं, मेलिंडा से आपको मेलिसा याद हो जाएगा, मेलिसा। और हैती, क्यूबा वगैरह में दे यूज्ड टू डोनेट अ लॉट, ठीक है। और यहाँ बहामास डोमिनिकन रिपब्लिक में भी आया था, डोमिनिक, ठीक है, बर्मुडाज भी। नेक्स्ट है सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा, सॉरी, Montha weakens after making a landfall on Andhra Pradesh coast. The name Montha is given by Thailand. अच्छा, तो थाईलैंड ने ये वाला नाम दिया है, एंड इट मीन्स फ्रेग्रेंट और अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो वील रीड अबाउट दिस। मोंथा है ना इसका नाम, मोंथा को लर्न कैसे करेंगे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इज़ नियर वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल के पास में है। और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ऐसे वाला एक्सेंट रहता है कि ओ ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, है ना। मॉन, तो मन था को हम लोग मौन था, तो ये थोड़ा वेस्ट बंगाल का एक्सेंट ऐसे ही आप लर्न कर लो कि थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी आ गया है, ठीक है। तो उससे मौन था लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, Amazon Face Climate Time Machine experiment launched to study rainforest response to future carbon dioxide levels. तो this is important. Amazon Face का एक climate time machine experiment है, which has been primarily launched to study the response of rainforests to carbon dioxide levels, increased carbon dioxide levels, ठीक है। उसके बाद scientists warn of ocean burp as massive heat reservoir found beneath southern ocean called a thermal time bomb, as this restored heat may suddenly resurface.
ठीक है, तो इसमें बस ऐसे यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी। अगर बाय चांस पूछ लें कि किससे रिलेटेड है ये ओशन बर्प, तो इट इज़ related to a massive heat reservoir which is found beneath the southern ocean। ठीक है, नाम क्या है? southern ocean, ocean burp, BURP। कौन से southern ocean में दिया नहीं? अच्छा, एंटार्क्टिका के southern ocean में। ठीक है, नेक्स्ट है हेमी। It is a new species of slender gecko, so this is also not important. Next है NPCM has announced Noradehi Wildlife Sanctuary as the third cheetah site after Kuno Palpul National Park and Gandhi Sagar Sanctuary. So this is again very important. Project Cheetah के अंडर cheetahs from Africa were brought to India and they were relocated to कोनो पालपुर नेशनल पार्क। फिर वहाँ से गांधी सागर सेंचुरी में भी ले गए और अभी थर्ड जगह नौरा देही में भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, बस यही था न्यूज़। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू नवंबर के ऑल द एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, so first of all, we have Supreme Court has directed the Jharkhand government to notify Sarand National Forest as a wildlife sanctuary। ठीक है, तो अगेन इसको लर्न, दिस इज इम्पोर्टेंट। वैसे तो अभी हाँ उन्होंने डायरेक्ट किया है ना, तो अभी बना नहीं है कंफर्म्ड, तो इसके लिए जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड, बट अभी शायद बना नहीं है सारंग फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू डू सो। फिर है at the COP30 climate summit in Belém, Brazil, the Climate Investment Funds launched a new program, that is Arise, with initial funding of millions from Germany and Spain। तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या हुआ है, COP30 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 क्लाइमेट समिट हुआ है ब्राज़ील में, वहाँ पे द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज अराइज। फुल फॉर्म किया है एक्सेलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अराइज कहाँ पे लॉन्च हुआ है। अराइज इट वाज लॉन्च्ड एट द COP30 क्लाइमेट समिट एट ब्राज़ील। ठीक है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने लॉन्च किया था इसको। नेक्स्ट है इंडिया जॉइंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर अहेड ऑफ COP30। It indicates commitment to equitable climate action and forest conservation। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है एज एन ऑब्जर्वर बिफोर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। नेक्स्ट है ओमान has been elected as a member of the UNESCO Man and Biosphere Council for the 2025-29 term during the 43rd UNESCO General Conference in Samarkand। Oman has been elected as a member of the UNESCO Man and Biosphere Council during the ठीक है, तो ये बस ऐसे ही थोड़ा सा, दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम बट यू शुड जस्ट नो। नेक्स्ट है द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड एट अबू धाबी। हाँ ये हमें पता है, वी हैव रेड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, इन फैक्ट 3 to 4 times वी हैव रेड दिस। ठीक है, तो कहाँ कब हुआ था, 9th to 15th October 25 हुआ था और 1400 प्लस मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैड पार्टिसिपेटेड।
Next, a policy framework for relocation and coexistence in India's tiger reserves has been released by the Ministry of Tribal Affairs to protect tribal rights under the Forest Rights Act 2006 during relocation and promote community intensive conservation. ठीक है, तो ये क्या है? A policy framework for relocation and coexistence in India's tiger reserves. It has been released by Ministry of Tribal Affairs to protect tribal rights under the Forest Right Act 2006 during relocation and to promote community inclusive conservation. नेक्स्ट है ग्राफ 3 के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू टैकल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर. ये आपको पता है, अगर AQI क्रॉसेस 300 ओनली देन इज इट ब्रॉट इन टू फोर्स. ठीक है, तब ग्रैप फोर्स में आ जाता है. और किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड प्राइमरली बाय सेंट्रल. रुको एक सेकेंड, लेट मी चेक कौन लॉन्च करता है GRAP को. ये रहा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज द वन हु लॉन्चेस द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. मतलब वो ही नोटिफाई करते हैं कि अच्छा अभी वी आर लॉन्चिंग सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, और 6 वाला फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रीलोकेशन एंड को एग्जिस्टेंस इन इंडियाज टाइगर रिजर्व्स. ठीक है, तो इट इज़ प्राइमरीली एम्ड एट इंश्योरिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये दिया गया है. अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रीलोकेशन एंड को एग्जिस्टेंस मतलब वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस को एग्जिस्टिंग टुगेदर. किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने निकाला है. ठीक है, दिस इज मतलब आपको पता ही चल जाएगा, ट्राइबल्स आर द वंस हु को एग्जिस्ट विद वाइल्ड लाइफ. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने निकाला है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है. नेक्स्ट है कोवलम of Tamil Nadu gets blue flag certification for the 5th consecutive time this year. ठीक है, and it is Tamil Nadu's first blue flag beach. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कोवलम. इससे पहले हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में 5 बीचेस हैव बीन गिवन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ठीक है, उनके नाम क्या क्या थे? वेट अ सेकेंड, ये रहा, श्रीवर्धन बीच, नागांव बीच, परनाका बीच एंड गुहागर बीच. और लास्ट क्या है? 1 2 3 4, हाँ, लडगार बीच. ठीक है, तो ये 5 को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इस साल नहीं, 2025 में मिला है. और जो कोवलम बीच ऑफ तमिलनाडु है उसका भी रीन्यू हो गया है इस. ठीक है, कोवलम तमिलनाडु, एंड इट इज़ द फर्स्ट beach from Tamil Nadu to receive the blue flag certification. Next is scientists at Center for Cellular and Microbiology, Hyderabad, have helped decode the genome of gibbons. So this is not very important. Next क्या है? Intergenerational equity. Supreme Court Judge PS Narasimha recently said that many of the environmental law principles have been imported from the Western countries, such as intergenerational equity, and these are anthropocentric and would hardly be of any assistance to protect an endangered species from extinction. ठीक है, तो ये वैसे काम का नहीं है, इसमें बस एक चीज़ काम का है, विच इज़ द फ्रेज इंटरजनरेशनल इक्विटी. ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जज,
हमारे जो भी इन्वायरमेंटल लॉज है ना, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, उनको देख देख के हमने बना लिए हैं, एंड दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग in ensuring the protection of endangered species, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ऑफ दीज लॉज आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वो ह्यूमंस को सेंट्रल मानते हैं, ह्यूमंस सेंटर है, और बाकी जो पेरिफेरी पे क्या है, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब को पेरिफेरी पे मानते हैं, ठीक है. एंथ्रोपोसेंट्रिक लॉज हैं, ऐसे वो कह रहे हैं. So they are not very effective in preventing extinction of animals. Next है Himachal Pradesh University scientists found sal to be the best air purifying tree against pollution. ठीक है, तो हिमाचल, ये नॉर्मल न्यूज़ है. You can just remember the name of the tree. ठीक है. नेक्स्ट है एटलस moth. World's largest moth recently was spotted in Karnataka. तो बस ये पूछ सकते हैं कि एटलस मॉथ करके, या तो विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉथ, और ये नहीं तो इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ इट फाउंड. तो तमिलनाडु साइड, नहीं सॉरी, कर्नाटका में मिलता है ये. नेक्स्ट है दी एट नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल. It will be held from November 26th to 28th at the Namdapha National Park and Tiger Reserve in Meo, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो इसमें बस नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इतना ही लर्न करना है आपको. द रेस्ट ऑफ द न्यूज़ आइटम इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट कॉप्स फ्लावर, द रेयर ब्लूम दैट स्मेल्स लाइक डेथ, इट्स स्पीशीज नेम. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया में किसी फ्लावर का नाम रखा है कॉप्स फ्लावर. नेक्स्ट है केन टोड रैंक्ड वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज. तो इसको आप याद रख लीजिए. ठीक है, इसका नाम क्या है? केन टोड. इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया टू ब्रिंग 8 चीताज फ्रॉम बोट्सवाना बाय दिसंबर 2025. तो वही प्रोजेक्ट चीता के अंडर we are planning to bring 8 more cheetahs from Botswana. Botswana is an African country. Next है UPL launched global campaign that is a farmer can, the hero you don't know you need, ahead of the CPO 30. So this is not very very important. ठीक है. फिर IMD का क्या है? फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू इम्पैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली NCR. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं हर साल. नेक्स्ट है कंचनजोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम का जो है ना, इट हैज़ बीन रेटेड एज गुड बाय IUCN एंड इट इज़ द ओनली इंडियन साइट विद अ पॉजिटिव स्टेटस. ठीक है, नाम क्या है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क फ्रॉम IUC. उसको IUCN ने गुड स्टेटस दे दिया है. ठीक है, कहाँ पे है ये? सिक्किम में है. ठीक है. नेक्स्ट है टाइफून कालमेगी लीव्स 66 डेड मेनली इन फिलीपीन प्रोविंस. तो बस इसमें ये पूछेंगे कि टाइफून कालमेगी कौन से कंट्री में इसका लैंडफॉल हुआ था. सो द आंसर वुड बी फिलीपींस. ठीक है. इसको लर्न कैसे करना है? कालमेगी. ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. फिलीपींस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में नूडल्स, मैगी, ये सब कुछ बहुत कॉमन होता है. ठीक है, रामेन. ठीक है, तो इसको लर्न हो जाएगा कि कल मैगी खाएंगे, कल मैगी. ठीक है, इससे आपको लर्न हो जाएगा फिलीपींस में आया था ये वाला टाइफून. नेक्स्ट है सुपर टाइफून फंगबोंग. इट फोर्सेस मास इवैक्यूएशंस इन फिलीपींस. अगेन नाम पूछेंगे और विच कंट्री इट हैपेंड इन.
इसका नाम क्या है? फंग वोंग। कहाँ पे आया था? अगेन फिलीपींस। तो फिलीपींस में ही आए हैं। अभी हमने 5-6 पढ़ लिए। मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स हैव अकर्ड इन फिलीपींस। तो कोई भी ऐसे थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन टाइप नाम दिखे, इट विल आइदर बी इन चाइना और फिलीपींस। ठीक है, तो फुंगवोंग इज फ्रॉम फिलीपींस। नेक्स्ट, जो ये टाइफून फंगवोंग था, इट हैड इंटेंसिफाइड टू बिकम अ सुपर टाइफून विद स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब उसके सस्टेन विंड्स थे 185 किलोमीटर्स पर आवर के, है ना। और ये ईस्ट ऑफ लुजोन इन फिलीपींस, दैट इज़ वेयर इट वाज रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 concluded in Brazil with the approval of Global Mutirao, uniting humanity in a global mobilization against climate change. तो नाम क्या है? ग्लोबल मोटिराओ, जो भी यूनाइटिंग ह्यूमैनिटी इन ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, कंबोडिया अनाउंस्ड सपोर्ट फॉर द fossil fuel non-proliferation treaty initiative at a high-level meeting on 17th November during COP30 at Belém. अच्छा, 17 countries including France, Brazil, Belgium, Canada have joined the Blue NDC. ब्लू एनडीसी चैलेंज है। अच्छा, ये दूसरा न्यू, हाँ ठीक है। तो बेसिकली एक न्यू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हैज़ कम इनटू बीइंग विच इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनिशिएटिव। और कब आया था ये? बेसिकली COP30 में कंबोडिया ने अनाउंस किया था इसके लिए सपोर्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट क्या है न्यूज़ आइटम? ब्लू एनडीसी चैलेंज में 17 कंट्रीज हैव joined the challenge. This is not very important. Next, COP30 presidency has formally launched the Integrated Forum on Climate Change and Trade. Integrated Forum on Climate Change and Trade, IFCCT, creating the first permanent global platform dedicated to navigating rising tensions between trade policies. So this is very important. ठीक है, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। तो बेसिकली टेंशन्स क्या होते हैं ट्रेड पॉलिसीज़ में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? जैसे कि अभी हमारा इंडिया और यूके के बीच में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इम्पोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन गुड्स विल बिकम वेरी कॉस्टली इन ब्रिटेन, so that is something which will negatively affect our exports. ठीक है, तो ये एक कंटेंशियस इशू है। और हम लोग क्यों ओपोज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द CBDR प्रिंसिपल, दैट इज़ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि CBDR के अंडर हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी द वन हु शुड बी पेनलाइज्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। तो हाउएवर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने लग गए अब वो लोग, विच इज़ रियली नेगेटिवली अफेक्टिंग आर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है TRST01 लॉन्चेस AI ब्लॉकचेन क्लाइमेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एट COP30. It provides an AI and blockchain climate governance system linking the entire emissions value chain for transparent, auditable implementation of Article 6. इसमें बस आप इतना ही याद रखो कि AI ब्लॉकचेन क्लाइमेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? TRST01 ने। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी नॉट वेरी इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट है लीड IT 2.0. इट हैज़ बीन अनाउंस्ड एट COP 28 30, हाँ 28 दुबई, ठीक है। 30 होना चाहिए, नहीं 30 वाला वहाँ पे है ब्राज़ील, ठीक है। लीड IT 2.0 हैज़ बीन अनाउंस्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए। Turkey is said to host next year's COP 31 climate summit under a developing compromise arrangement with Australia. बस इतना नाम पता होना चाहिए कि 31 कौन होस्ट कर रहा है, तो टर्की कर रहा है। नेक्स्ट, इंडिया announced that it will host the Global Big Cat Summit in New Delhi, thus reaffirming global leadership in wildlife conservation. फिर 55 ये काम का नहीं है इसका, बस आप ये याद रख लीजिए कि कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। वहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व वो सब यूपी के हैं। नेक्स्ट, 2 बाइसन्स वर पोस्ड एट चिल्फी ईस्ट रेंज ऑफ, ये भी काम का नहीं है, बस नाम काम का है कि बोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लर्न करने के लिए कैसे लर्न कर सकते हैं, बोराम देव। तो भौरा आपको पता होगा ना, एक हिंदी वर्ड है ना। तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि 36 भौरे कहीं पे एक फ्लावर के अक्रॉस, अक्रॉस नहीं, फ्लावर के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। 36 भौरे आर फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर, उससे लर्न हो जाएगा। नाउ अ वाइल्ड टाइगर हैज सेटल्ड इन गुजरात रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर डिकेड्स। इसका बस लर्न क्या कर, इम्पोर्टेंट क्या है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन बॉर्न चीता मुखी गिव्स बर्थ टू 5 कब्स। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, देखो पहले कहाँ से आए थे प्रोजेक्ट चीता के अंदर, पहले चीतास कहाँ से लाए थे हम लोग, नमीबिया से, है ना। इस बार हम लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, सम डिफरेंट कंट्री, नॉट फ्रॉम नामीबिया, ठीक है। वो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, आई फॉरगॉटन इट, बट जस्ट चेक दैट वंस। फिर IUCN हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्लेंडर बिल्ड कर्ल्यू एज एक्सटिंक्ट। तो बस एक बार रीड दिस एंड गो, स्लेंडर बिल्ड कर्ल्यू करके है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड साइक्स नाइटजार रिकॉर्डेड इन मैंगलोरो इन अ फर्स्ट फॉर साउथ इंडिया। तो साइक्स नाइटजार करके एक माइग्रेटरी बर्ड होती है, वो फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में आई है, मैंगलोरो में इट वाज बीन डिटेक्टेड। नेक्स्ट है, अच्छा, a new global report has been released at IUCN Conservation Congress in Abu Dhabi, and it has warned that India's dugong populations in Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Parkway, and Andaman Nicobar Islands is reducing. तो वो कंसर्न उसने फ्लैग करा है ग्लोबल रिपोर्ट ने, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यू आउल फ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम केरला आफ्टर 134 years, एंड उसका भी नेम दे दिया, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट, अ टीम फ्रॉम असम स्टेट जू एंड बोटानिकल गार्डन recently recorded the first case of albinism in checkered keelback, also called the Asian water snake in Assam, not very important. Next, Forest Department has no records of authorized pet shops dealing in African grey parrots. तो ठीक है, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। रिसर्चर्स ऑफ द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची have discovered a new species of deep sea squid from Arabian Sea and named it as Taningia selassie, that is Indian octopus squid. ठीक है, तो just read this one, this is not very important. Next, by the SCNBW Standing Committee of the National Board for Wildlife, chaired by Union Minister, has recommended reinstating Rhesus macaw under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act.
ठीक है, तो रीसस मकाओ क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमेट। प्राइमेट मतलब मंकी टाइप कुछ रहता है ना? और किसमें? शेड्यूल 2 ऑफ WPA। एक सेकेंड। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स a high degree of protection uh, to prevent टू प्रिवेंट हंटिंग ऑफ सर्टेन एनिमल्स। ठीक है, शेड्यूल 2 में ये रहता है। तो रीसस मकाओ को भी उसमें डालने का बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन। फिर असम हैज़ बैंड इंटर्स डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ लाइव पिग्स एंड प्रोहिबिटेड pork sales in 7 districts after a sharp spike in African swine fever. Not important. Karnataka issues advisory on Naegleria fowlery risk for pilgrims, warning about primary amoebic meningoencephalitis caused by Naegleria fowlery, which is basically a brain-eating amoeba. तो कर्नाटका में एक कुछ डिजीज़ के लिए एडवाइजरी इशू करा है गवर्नमेंट ने। नाम क्या है उसका? नेग्लेरिया फाउलरी। ठीक है, अमीबिया की वजह से होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोन फीना इन ऑस्ट्रेलियाज नॉर्दर्न टेरिटरी। ट्रॉपिकल नहीं, ठीक है। तो ये अभी इसका भी नाम आ सकता है कि साइक्लोन फीना कहाँ पे आया था? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पोर्शन में आया था। ठीक है, नाम क्या है? फीना। तो नेक्स्ट देखो, फाइना, इसको लर्न कैसे करना है? फाइन, फाइना से फाइन कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फाइन कंट्री। फाइन मतलब अच्छा कंट्री, सुंदर कंट्री, है ना? फाइन कंट्री करके ऐसे लर्न कर लो। साइक्लोन फीना। नेक्स्ट है, अ टीम रिसेंटली मैप्ड द इनसाइड ऑफ बोलिवियाज Utrunco volcano and found that its strange surface motions come from hot fluids and gases moving below the crater, not rising magma that is ready to erupt. ठीक है, बस इसमें आप ये नाम नाम लर्न कर लेना कि उतरुंकु वोल्केनो कहाँ पे है? बोलिविया। ठीक है, साउथ अमेरिका, है ना? बोलिविया का उतरुंकु वोल्केनो। नेक्स्ट है, Lycodon irvini is a newly identified glossy black wolf snake discovered in Great Ecobar. Not important. ठीक है, next a survey finds nearly 70% of the corals at UNESCO listed Ningalu reef have died. ठीक है, तो निंगालू रीफ कहाँ पे? अबाउट उसके बारे में देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, निंगालू रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। एंड नियरली 70% ऑफ द कोरल्स हैव डाइड आइदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इवेंट्स और सम अदर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, recently the researchers have found that plant leaves from Manchurian walnut tree they show extraordinary weed killing potential. Not important. Then Ethiopia's Haile Gabi volcano erupts after 12,000 years. It is located in Afar region of Ethiopia, that is 800 kilometers northeast of Addis Ababa. So the name of the volcano is important. क्या है? Haile Gabi volcano.
ठीक है। उसके बाद में अ प्रपोजल बाय द सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी टू डिक्लेयर अ गोवा टाइगर रिजर्व इन अ फेज्ड मैनर हैज बीन फाइल्ड, सो नॉट इम्पोर्टेंट। जब बन जाता है तब इम्पोर्टेंट है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है उसका नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। देन साइक्लोन दितवा, उसका अलर्ट was issued all over Bay of Bengal. The name Dithwa was contributed by Yemen Meteorological Services and refers to the Dithwa Lagoon on Socotra Island. ठीक है। तो पूरे बे ऑफ बंगाल में इसके लिए अलर्ट इशू किया था। देन द गवर्नमेंट विल सून सेट अप द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। तो नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनाने वाले हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, क्योंकि वहाँ पे कोरल रीफ वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे बन रहा है। देन साइक्लोन सेन्यार, it originated from a low pressure system near Malaysia or Strait of Malacca over the South Andaman Sea and adjoining region of Bay of Bengal, which intensified into a depression and further strengthened. नाम क्या है? साइक्लोन सेन्यार। It had originated from a low pressure system near Malaysia or Strait of Malacca over the southern Andaman Sea, और वो बे ऑफ बंगाल में ही है ये भी। इससे पहले साइक्लोन दितवा वाज आल्सो इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड 2025। It is basically a seismic zonation map which classifies different regions of India based on their earthquake hazard potential, thus helping determine how strong structures must be to withstand earthquakes. ठीक है। तो इसमें बस नाम इम्पोर्टेंट है कि एक इंडिया का अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड भी होता है। ठीक है। और इट बेसिकली categorizes India into different seismic zones. उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन के थोड़े गाइडलाइंस बनते हैं so that the constructed structures are able to withstand earthquakes. Next, we'll complete all the news items from December of 2025 which are from the section of environment. ठीक है। तो पहला है COP24 of the Barcelona Convention held in Cairo, which is a legally binding UNEP-led regional environment agreement for protecting the Mediterranean Sea from pollution and promoting sustainable coastal marine management was held. ठीक है। तो अभी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्या है? नाम। बार्सिलोना कन्वेंशन क्या रहता है? इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। उसका COP24 हुआ था कायरो में। Next is sites. Sites marked its 50th anniversary at COP20 in Samarkand, Uzbekistan. CITES stands for Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It is a legally binding multilateral treaty regulating international trade in wild animals and plants to ensure that it does not threaten species survival. ठीक है। तो उसका 50th एनिवर्सरी था और COP20 वॉज हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, अ डीप डिवाइड हैज इमर्ज्ड अमंग मेंबर स्टेट्स ओवर UNEP's मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? triggering tense negotiations as UNEA 7 opens in Nairobi. UNEA 7 is the world's highest environmental decision making forum convened under UNEP, bringing together all UN member states to negotiate global environmental policy. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नायरोबी। ठीक है। नेक्स्ट, आर्मीनिया हैज़ अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो
of COP17 of the Convention of Biodiversity, featuring Erivan anomalous blue, which is basically a very rare endemic butterfly. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो COP17 था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जो अर्मेनिया में इट वाज हेल्ड, उसका जो मैस्कॉट है ना, नहीं, ऑफिशियल लोगो है, ऑफिशियल लोगो में किसकी फोटो लगी है, which animal has been featured, so that is Erivan anomalous blue, which is a kind of a butterfly. Next day, a tigress will be airlifted from the Pench Tiger Reserve to Ramgarh Vishdari Tiger Reserve of Rajasthan, and it is India's second such interstate translocation. ठीक है, बेसिकली यहाँ का टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एयरलिफ्ट कर रहे हैं. दैट इज ऑल. Next, Telangana's Mulugu forest officials will launch safari services for the first time in Ettur Nagaram Wildlife Sanctuary, thus boosting ecotourism. ठीक है, तो तेलंगाना का मुलुगु फॉरेस्ट, ये भी इतना काम का नहीं है, बस क्या काम का है, एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, सो तेलंगाना. ठीक है, तो तेलंगाना में बहुत सारे नगर मतलब सिटीज़ हैं, लाइक हैदराबाद, सिकंदराबाद. ठीक है, ये सब सिटीज़ हैं, तो उससे आप लर्न कर सकते हो. नगर काफ़ी सारे हैं तेलंगाना में, तो उससे नगरम, ईतू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, नेक्स्ट है, a rare striated grass bird was recently recorded in Chaprala Wildlife Sanctuary in Gadchiroli district, thus marking a major extension of the species in Maharashtra. तो बस इसमें बस यही याद रखने का है कि चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, इट इज़ इन महाराष्ट्र. ठीक है, फिर the administration of the Sariska Tiger Reserve is adopting new technology like drones to monitor its steadily increasing tiger population. Next क्या है, NHAI introduces India's first wild safe road on NH45 in Madhya Pradesh. ठीक है, it passes through Naura Dehi Wildlife Sanctuary and Virangana Durgavati Tiger Reserve. So this is again very important news item. क्या है, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड सेफ रोड कहाँ पे, NH45. ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे, सेफ्टी से 45, सेफ्टी उससे राइम क्या करते हैं, 45. ठीक है, और कहाँ पे है ये, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट है, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has said that Virangana Durgavati Tiger Reserve will become the new home for cheetahs in the state before the monsoon next year. ठीक है, 108. अच्छा, फिर है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हैज imported 8 black-capped capuchin monkeys from the Induna Primate and Parrot Park in South Africa under an animal exchange program. तो ये दिस इज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना. तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे होता है, कर्नाटका में. और क्या इंपोर्ट करा है इन्होंने, मंकीज़ के 8 टाइप ऑफ मंकीज़, टाइप्स नहीं, 8 मंकीज़ इंपोर्ट करें from the Parrot Park in South Africa. Next है, government will soon set up the National Coral Reef Research Institute in Andaman and Nicobar Islands. Next, cyclone Bakung, which originated over the southwest Indian Ocean and is moving away from Indonesian region. ये severe tropical cyclone है and it was named by Jakarta, Indonesia. ठीक है,
नेक्स्ट है क्लाइमेट मॉडल्स एंड ओशन ऑब्जर्वेशंस शो अर्ली साइंस ऑफ अ पॉसिबल एल नीनो रिटर्न इन 2026। एल नीनो में क्या होता है इंडिया में? लो रेनफॉल। ठीक है। As warming in the equatorial Pacific weakens the La Nina conditions, it is a climate phenomena marked by abnormal warming of sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific Ocean, thus disrupting the global weather patterns. Where meteorologists have warned that another sudden stratospheric warming event may occur in December 2025, potentially disrupting the polar vortex and sending unusually cold Arctic air into parts of United States. ठीक है, sudden stratospheric warming is a rapid temperature rise in the stratosphere. इसकी वजह से वही सब चीज़ें होती हैं, रॉस्बी वेव्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना, वो सब इसी के अंडर आता है एज फार एज आई नो। नेक्स्ट है, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट, न्यू सेमी एक्वेटिक स्पाइडर स्पीशीज डोलोमीडीज, ये भी अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, मेगालोब्लाटा, the world's largest known winged cockroach has been found in tropical, again not very important। ठीक है, कहाँ पे मिला है? वही पेरू, इक्वाडोर, पनामा साइड मिला है। Next, scientists have recently discovered a new species of snakehead fish named Chana boy from Meghalaya, not extremely important. Next, BNHS will release 6 critically endangered vultures into the wild in Assam under India's vulture recovery program। ठीक है, तो स्लेंडर बिल्ड वल्चर और वाइट रम्प्ड वल्चर को रिलीज कर रहे हैं इनटू द वाइल्ड फॉर the India's vulture recovery program। Next is scientists predict that Africa's AFAR region could become Earth's next ocean basin। Location क्या है? It is at the northeastern part of Ethiopia under the Red Sea and it meets the Gulf of Aden। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में ये पूछ सकते हैं कि अफ्रीका का एफआर रीजन कहाँ पे है। ठीक है, तो इथियोपिया में रेड सी के पास में कहीं पे है। ये है ब्लैक बैंड डिजीज पे है ये। ठीक है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, उसका अराउंड 75% ऑफ द दिस कोरल नोयोपोरा कोरल जो है ना, that has been wiped out due to the rare black band disease, so this becomes important। ठीक है, next, as informed by the Council of Scientific and Industrial Research, the Central Food Technological Research Institute Mysore has undertaken, ये भी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इंडिया रिवाइज, हाँ ये वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। क्या है? इंडिया ने दे हैव रिवाइज द अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड 2025 विच इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग जोन्स, सीस्मिक जोन्स की कैटेगरीज बनाता है सो दैट constructions in those areas can be designed accordingly. Construction can be done accordingly to prevent any loss during earthquakes। Next, 40th Asian water bird census will be conducted and 60th International water bird census to enumerate the bird species will be held at the Korenga Wildlife Sanctuary on January 10th and 11th of 2026। ठीक है, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है? 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। दे आर बीइंग हेल्ड एट कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स adjoining wetlands also। कब हो रहा है? जनवरी 10th और 11th को। Next, Mukundra Hills Tiger Reserve Administration in Kota has launched a poster and trailer of a documentary
titled Enchanting Mukundra recently. बस इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है, कोटा वगैरह के पास में। नेक्स्ट है, गुजरात हैज़ बिकम अ टाइगर स्टेट आफ्टर 33 years. The decision was taken by NTCA, which has confirmed Gujarat's inclusion in the All India Tiger Estimation 2026, following sustained evidence of tiger presence in the Ratanmahal Sanctuary. रतनमल सैंक्चुरी कहाँ, गुजरात में ही है, ठीक है। सो नाउ इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ टाइगर स्टेट। A rare clouded leopard has been photographically recorded inside the Kakoi Reserve Forest in Assam's Lakhimpur division, ठीक है, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में मिला है। द क्लाउडेड लेपर्ड इज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल स्पीशीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि क्लाउडेड लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। Next is, scientists recently reported a rare footage showing sharks living inside Kawachi volcano near Solomon Islands. तो बस इसमें बस आपको ये याद रखना है कि कवाची वोल्केनो कहाँ पे है, सोलोमन आइलैंड्स के पास में, ठीक है। तो इंडिया का देयर इज़ अ इंडियन ओशन रीजन सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। So India will soon have nearly 100 tsunami ready villages under this program, ठीक है, tsunami ready recognition program. Now it is an international community based recognition program developed by IOC, that is International Organization Oceanographic Commission, ठीक है। उसके अंदर एक प्रोग्राम है सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम, उसके अंदर इंडिया विल नाउ सून हैव 100 सुनामी रेडी विलेजेस। किसका प्रोग्राम है ये, यूनेस्को का है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। फिर है, साइंटिस्ट्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड नीलिस सिकेमेनस, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीवियसली अननोन फंगस, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। Government has approved a new project to protect breeding habitats of sandbar nesting birds, including Indian skimmer, for the conservation of endangered bird species in the Ganga basin. ठीक है? So that is all for this video. Thank you. We have covered all the environment related current affairs for the upcoming CBSE direct recruitment examination 2026. ठीक है? Kindly like, share and subscribe to my video if you found this video helpful, and you can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.